guys, this is Crony and you are watching ADA 247. Today we will start with pronouns that often go wrong. If you look at this sentence, can you think of anything which is to be done? Most common speakers or average speakers will use the same sentence. It's very hard to find error in this particular sentence. But according to rules of English grammar, if you come across the word anything, everything, something, nothing, so make sure the presence of these words allows you to use that rather than which. Once again, I explain it. See the sentence, can you think of anything which is to be done? Mostly people will use which here, but according to grammar, which is not feasible because the word anything is used. So it's not only anything. If you find anything, everything, something, nothing, make sure you use that in place of which or in place of who. This is rule number 1. This is particular pronoun that often goes wrong, which I have given you. If you look at the second sentence, he is the strongest man. He is the strongest man. That has ever lived in Delhi. Now, I have used the word that here. Very often, it is a tendency among students, they use who over here. He is the strongest man who has ever lived in Delhi. Because जब आप स्कूलिंग करते हैं तो स्कूल लाइफ में अक्सर स्कूल टीचर्स सिखाते हैं कि मैन होने पर हु का प्रयोग करना चाहिए. बट सी, मैंने यहाँ पर आपको बोला है कि यहाँ पर हु का यूज़ फिजिबल नहीं है. हु का यूज़ यहाँ पर नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री दी हुई है. तो ऑलवेज रिमेंबर कि अगर आपको सुपरलेटिव डिग्री देगी हो तो हु और विच के बदले आप दैट का यूज़ करेंगे. तो 2 रूल्स. Once again, you can think of anything, everything, something, nothing होने पर who और which के बदले that का यूज़ करते हैं और superlative डिग्री होने पर who और which के बदले that का प्रयोग करते हैं. Look at rule number 3 now. If the sentence begins with it is or it was, always remember if the sentence begins with it is or it was, we don't use who or which. In place of these two, remember to use that. Look at the sentence, it was the cat and not the man who died. So we can see the sentence begins with it was. So it was makes us use that in place of who or which. तो वेरी सिंपल रूल है. आपको याद रखना है कि सेंटेंस की शुरुआत देखनी है इट इज़ और इट वाज से. अगर इन दोनों से सेंटेंस की शुरुआत हो रही है तो आप हु और विच का इस्तेमाल नहीं करेंगे. हु और विच के बदले दैट का इस्तेमाल करेंगे. रूल नंबर 4 की तरफ चलते हैं. रूल नंबर 4 में आपके पास 6 वर्ड्स हैं जो आपको हमेशा ध्यान रखने हैं. 1 इज ओनली, ऑल, नन, लिटिल, फ्यू, एनी. इन वर्ड्स के होने पर एक बार फिर से आपको याद रखना है कि इन वर्ड्स के होने पर ना तो हम हु का प्रयोग करेंगे और ना ही विच. इनके बदले वंस अगेन आपको याद रखना है कि हम दैट का यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, लुक एट द सिंपल सेंटेंस, मैन इज़ द ओनली एनिमल हु कैन डू वंडरफुल डीड्स. सो मैन इज़ द ओनली, द वर्ड ओनली इज़ गिवन.
तो ओनली वर्ड के होने पर आपको याद रखना है कि हमें हु और विच का प्रयोग नहीं करना है, यहाँ पर हमें दैट शब्द का इस्तेमाल करना होगा। तो मैन इज द ओनली एनिमल दैट कैन डू वंडरफुल डीड्स। वन मोर एग्जाम्पल प्लीज। All which glitters is not gold. Now you can see the word all is given. So all word के होने पर भी हमें ध्यान रखना होगा who और which के बदले that का प्रयोग करना चाहिए। तो all that glitters is not gold is the right sentence. So we have done 4 rules now. We will start with 5th. Now look at rule number 5. In rule number 5, anyone, everyone, I have written anyone and everyone as single word. If you look over the right side, anyone, everyone, तो ये 2 words में लिखा हुआ है everyone and anyone. तो हमें पता होना चाहिए कि anyone को एक कब लिखते हैं और anyone और everyone को 2 words में कब लिखते हैं। सिंपल सा फार्मूला है कि अगर हम everyone और anyone का प्रयोग people के लिए कर रहे हैं, persons के लिए कर रहे हैं, humans के लिए कर रहे हैं तो एक शब्द में लिखेंगे। अदर्स के लिए कर रहे हैं तो एनी वन एंड एवरी वन, अदर्स के लिए लिखने पर 2 वर्ड्स में लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर एक सेंटेंस को देखें, एनी वन कैन ड्राइव अ कार, एनी वन कैन ड्राइव अ कार, तो ड्राइव करने के लिए ह्यूमन बीइंग की जरूरत है। तो यहाँ पर एनी और वन अलग अलग नहीं हो सकते, यहाँ पर एनी वन एक शब्द होना चाहिए। एनी वन can drive a car. Look at this sentence. She has 5 t-shirts. उसके पास 5 t-shirts हैं। Everyone is black. Everyone is black. तो यहाँ पर everyone t-shirts के लिए प्रयोग किया जा रहा है। तो t-shirts के लिए प्रयोग किया जा रहा है तो यहाँ everyone को हमें हमेशा 2 words में लिखना होगा। Everyone means कि सभी t-shirts जो हैं वो ब्लैक कलर की हैं। Everyone is black. अगेन ह्यूमन बीइंग्स के लिए यूज करने के लिए एक वर्ड और अदर्स के लिए यूज करने पर 2 वर्ड्स में प्रयोग करते हैं। एक और पॉइंट इसके अंदर जो है आपको विशेष ध्यान रखना है कि एनी वन और एवरी वन को 2 वर्ड्स में लिखते हैं अगर उसके बाद ऑफ का प्रयोग कर दिया जाए, चाहे वो ह्यूमंस के लिए हो या अदर्स के लिए हो। फॉर एग्जाम्पल एक सेंटेंस लेते हैं, every one of you will be selected. Every one of you will be selected. आप सभी का सिलेक्शन हो जाएगा। तो यहां पर everyone के बाद ऑफ लिखा हुआ है, ह्यूमंस के लिए यूज हो रहा है लेकिन ऑफ का प्रयोग किया गया है। तो ऑफ वर्ड के आ जाने पर हमेशा याद रखिए कि एवरीवन को एक साथ नहीं अलग अलग लिखा जाता है। तो आपका एक्चुअल सेंटेंस बनेगा एवरी वन ऑफ यू विल बी सिलेक्टेड। सो वी हैव डन 5 रूल्स। नाउ वी विल स्विच ओवर टू रूल नंबर 6। रूल नंबर 6, ईच अदर, वन अनदर। हमें याद रखना है कि अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इंग्लिश ग्रामेरियंस अलाउ करते हैं कि ईच अदर के बदले आप वन अनदर का यूज कर सकते हैं और वन अनदर के बदले आप ईच अदर का प्रयोग कर सकते हैं। बट ट्रेडिशनल इंग्लिश की डिमांड है कि ईच अदर का प्रयोग हमें 2 के लिए करना चाहिए और 2 से अधिक होने पर हमें वन अनदर का इस्तेमाल करना चाहिए। हमारे एजुकेशन सिस्टम में मेनली ट्रेडिशनल इंग्लिश को ही फॉलो किया जाता है, तो हम ट्रेडिशनल इंग्लिश के मुताबिक इन दोनों वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे। अगर आप इस सेंटेंस को देखें, द कपल वाज टॉकिंग टू, द कपल वाज टॉकिंग टू, तो कपल में 2 लोग इन्वॉल्व्ड हैं, 2 लोग हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पर यूज किया दैट कपल वाज टॉकिंग टू ईच अदर, कपल वाज टॉकिंग टू ईच अदर। नाउ अगर इस सेंटेंस को अगर आप देखते हैं, गुड बॉयज डोंट फाइट विथ, तो बॉयज की संख्या यहाँ पर ज्यादा है, तो 2 से ज्यादा हो जाने पर मैंने यहाँ पर यूज किया है वन अनदर। तो आप लोग भी प्लीज इसी रूल का यूज कीजिए, 2 होने पर ईच अदर और 2 से ज्यादा हो जाने पर वन अनदर का इस्तेमाल करते हैं।
मॉडर्न इंग्लिश के हिसाब से अगर आप ऐसे इस्तेमाल करते हैं इन प्लेस ऑफ ईच अदर और वन एंड अदर, अगर आप इनको इंटरचेंजेबल मानते हैं तो ठीक है, बट ग्रामर हमें ये कहती है कि इनका प्रयोग इंटरचेंजेबल है। बट इंडियन एजुकेशन सिस्टम में हमें ट्रेडिशनल रूल्स का ही यूज़ करना है, तो ट्रेडिशनल रूल का, इस रूल का आप हमेशा ध्यान रखेंगे, दो के लिए ईच अदर और दो से ज़्यादा हो जाने पर वन एंड अदर का प्रयोग करेंगे। रिपीट कर रहा हूँ, कपल में दो लोग हैं तो दो लोग होने की वजह से ईच अदर, और गुड बॉयज़ यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है नंबर ऑफ बॉयज़ ज़्यादा हैं, इस वजह से यहाँ पर हमने वन एंड अदर का यूज़ किया। So we have done 6. We will look at rule number 7 now. Start with rule number 7, please. Cat, car, ship, country. अगर आप इन नाउन्स को देखते हैं तो आमतौर पर इन सभी नाउन्स के बदले हम इट का यूज़ करते हैं एज अ प्रोनाउन, और हम इस समय उन प्रोनाउंस की बात कर रहे हैं जो हमारे लिए ऑफन ट्रबल क्रिएट कर देते हैं। अक्सर राइटर्स की आदत होती है कि वो इन वर्ड्स के बदले शी या हर का इस्तेमाल कर देते हैं एज अ प्रोनाउन। आप लोगों ने क्लास 8, 9, 10th में पढ़ा होगा रूल ऑफ पर्सोनिफिकेशन, जिसको हम हिंदी में मानवीकरण भी कहते हैं। यदि किसी वस्तु को और यदि किसी जानवर को हम इंसान का दर्जा देते हुए इंग्लिश लिखते हैं तो उन शब्दों के स्थान पर हम ही, हिज, हिम या शी, हर का इस्तेमाल अकॉर्डिंग टू सेंटेंस करते हैं। तो आपने अपने एग्जाम को माइंड में रखते हुए इन वर्ड्स को ध्यान रखना है। ये नाउन्स हैं कैट, कार, शिप, कंट्री, चैरिटी, स्प्रिंग, फेम। ये सभी नाउन्स हैं और इन सभी नाउन्स के लिए आमतौर पर हम इट का यूज़ करते हैं। बट सर्टेन राइटर्स की एक कला होती है इंग्लिश को लिखते वक्त कि वो पर्सोनिफिकेशन का यूज़ करते हैं। पर्सोनिफिकेशन के हिसाब से देखा जाए तो किसी भी वस्तु के लिए या किसी भी जानवर के लिए आप अकॉर्डिंग टू जेंडर ही, हिज और हिम या शी या हर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन लेफ्ट में लिखे हुए वर्ड्स के लिए अगर कोई राइटर शी या हर का इस्तेमाल कर रहा है एज अ प्रोनाउन तो समझ आइए उसमें कोई गलती नहीं है। आमतौर पर इट ही यूज़ होता है, पर पर्सोनिफिकेशन की वजह से आप यहाँ पर शी या हर का इस्तेमाल करते हैं। इन सभी वर्ड्स के अंदर जैसे कि कैट, कार, शिप, कंट्री, चैरिटी, स्प्रिंग, फेम, लिबर्टी, मर्सी, मून, इनमें आप कह सकते हैं कि एक तो जेंडर का भाव और दूसरा इनमें टेंडरनेस है। तो टेंडरनेस होने की वजह से हम इन शब्दों के लिए शी और हर का इस्तेमाल करते हैं। वेयर एज अगर आप इन वर्ड्स को कंपेयर करें, डेथ, थंडर, वार, विंड, विंटर, सन, इनमें हार्शनेस है। तो हार्शनेस होने की वजह से ही, हिज और हिम का इस्तेमाल किया जाता है। वैसे भी शी को हमेशा ग्रेसफुल माना जाता है, शी इज ग्रेसफुल, वेयर एज मैन को क्रूअल माना जाता है। इस वजह से शायद इन लोगों ने ही, हिज और हिम का इस्तेमाल किया हुआ है। तो हम ज़्यादा इसके लिए एफर्ट्स नहीं करेंगे, इन वर्ड्स को माइंड में रखेंगे कि इन सभी वर्ड्स के लिए अगर एग्ज़ाम में इट के बदले शी या हर का इस्तेमाल होगा तो आप उसको नो एरर ले लेंगे, उसमें कोई गलती नहीं है। और इन सभी वर्ड्स के बदले अगर कोई राइटर ही, हिज या हिम का यूज़ कर रहा है एज अ प्रोनाउन तो उसमें गलती नहीं है। एक एक एग्जाम्पल देखते हैं। चैरिटी हैज़ हर ओन प्लेजर, तो यहाँ पर चैरिटी नाउन है और इस नाउन के लिए हर का इस्तेमाल किया गया है, जो कि बिल्कुल ठीक है। और इस सेंटेंस में डेथ लेज हिज हैंड्स ऑन एवरीवन, तो डेथ एक नाउन है और इस नाउन के लिए हमने प्रोनाउन हिज का इस्तेमाल किया है, तो इसमें कोई गलती नहीं है। ऐसे सेंटेंसेस अगर एग्जाम में आ जाते हैं तो आप हमेशा उनको नो इम्प्रूवमेंट और नो एरर में मार्क कीजिए। तो इस प्रकार से इन वर्ड्स को मेमोराइज कर लीजिए कि इनके लिए शी और हर, और राइट में लिखे हुए वर्ड्स के लिए इनको भी अच्छे से मेमोराइज कर लीजिए कि इन वर्ड्स के लिए अकॉर्डिंग टू सेंटेंस ही, हिज और हिम का इस्तेमाल किया जाता है। सो वी हैव डन रूल 7. Now we will switch over to rule number 8, please. Look at rule number 8, please. Who versus whom. अक्सर ये देखा जाता है कि स्टूडेंट्स को ये बहुत दिक्कत आती है कि यहाँ इस वाक्य में हु ठीक रहेगा या whom रहेगा।
और हम अपनी गट फीलिंग के हिसाब से हु या हुम का यूज करना शुरू कर देते हैं। थोड़ा सा सिंपल तरीका अगर आप अपनाएंगे तो आपको हु और हुम में दिक्कत नहीं आएगी। मोहन इज माई फ्रेंड, मोहन इज माई फ्रेंड इज ऑनेस्ट। मान लीजिए आपको यहाँ पर हु या हुम में से कोई शब्द का इस्तेमाल करना है, सिंपल तरीका अपनाइए कि यहाँ इस सेंटेंस में लिख कर देखिए ही इज ऑनेस्ट ठीक सेंटेंस है या हिम इज ऑनेस्ट। तो हमें मालूम है हिम इज ऑनेस्ट कोई सेंटेंस नहीं है, ही इज ऑनेस्ट होना चाहिए। तो आप इस तरीके को अपना लीजिए कि जहां ही का प्रयोग हो सकता है, अगर मान लीजिए राधा इज माई फ्रेंड, शी इज ऑनेस्ट, तो जहां पर ही का यूज हो सकता है, शी का यूज हो सकता है, उस जगह पर हम हु का प्रयोग करेंगे। अगर इस सेंटेंस को देखें, द पर्सन आई मेट यस्टरडे, द पर्सन आई मेट यस्टरडे, आई मेट यस्टरडे, आई मेट हिम और आई मेट ही। सो हमें मालूम है कि वर्ब है तो वर्ब के बाद आई मेट हिम इज द राइट चॉइस। अगर हम हिम का, हर का या देम का यूज करना चाहते हैं तो यूज हूं, और जिस सेंटेंस में आपको लगता है आप आसानी से ही, शी या दे का यूज कर सकते हैं वहां पर हु का यूज कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, आई लाइक द स्टूडेंट्स, आई लाइक द स्टूडेंट्स आर हार्ड वर्किंग। हम यहाँ पर देख सकते हैं दे आर हार्ड वर्किंग होता है, देम आर हार्ड वर्किंग नहीं होता। तो दे आर हार्ड वर्किंग, तो दे शब्द हमें बतला रहा है कि यहाँ पर हमें किसका इस्तेमाल करना चाहिए, हु का। इस सेंटेंस को देखिए, ही इज द मैन अबाउट आई वॉज टॉकिंग, आई वॉज टॉकिंग विद हिम और विद हर। तो जहां पर आपको हिम, हर और देम का यूज करना होता है वहां पर आप हुम का इस्तेमाल कीजिए। फिर दोबारा से इस सेंटेंस को आप देख सकते हैं, मोहन इज माई फ्रेंड, ही इज ऑनेस्ट। तो ही के आ जाने पर हमने हु का इस्तेमाल किया। आई लाइक द स्टूडेंट्स, दे आर हार्ड वर्किंग, तो दे वर्ड के आ जाने पर हमने हु का इस्तेमाल किया। तो ही, शी और दे होने पर हु का इस्तेमाल कीजिए। ही इज द मैन अबाउट हुम। और वैसे भी आप एक चीज और याद रख सकते हैं, अबाउट यहाँ पर एक प्रेपोजिशन है और प्रेपोजिशन के बाद हमेशा हुम का ही इस्तेमाल किया जाता है। और अगर दूसरे वर्ड्स में देखें तो आई वॉज टॉकिंग विद ही नहीं होता, आई वॉज टॉकिंग विद हिम। तो हिम वर्ड के आ जाने पर, तो हिम, हर और देम के आ जाने पर आप हुम का इस्तेमाल करेंगे और ही, शी और दे होने पर हु का। इस तरह से हमने रूल नंबर 8 को क्लियर किया। नाउ लुक एट रूल नंबर 9 प्लीज। इफ एनीबडी कॉल्स, टेल देम आई एम बिजी। According to modern rules, there is no error in this particular sentence, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज में सर्टेन चेंजेस हो रहे हैं। अगर हम ट्रेडिशनल इंग्लिश के हिसाब से चलते हैं जो कि हम लोग एग्जामिनेशन में फॉलो करते हैं, तो यहाँ पर देम का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। एनीबडी, एवरीबडी, एनीबडी, एवरीबडी, समबडी, एवरीवन, समवन, इन सभी वर्ड्स के लिए जो हम प्रोनाउन यूज करते हैं वो ही प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। तो ही प्रोनाउन के हिसाब से ही आपका आंसर आना चाहिए। इफ एनीबडी कॉल्स, टेल हिम आई एम बिजी। तो प्लीज आप ध्यान रखेंगे, जबकि आज की जितनी भी लेटेस्ट डिक्शनरीज आ रही हैं उन सभी डिक्शनरीज में एनीबडी, एवरीबडी, समवन, समबडी, इन सभी के लिए देम का ही इस्तेमाल हो रहा है। बट हम ट्रेडिशनल इंग्लिश को फॉलो करते हुए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर देम नहीं, हिम का इस्तेमाल करेंगे। इफ एनीबडी कॉल्स, टेल हिम आई एम बिजी। ये था आपका रूल नंबर 9। ऐसे जो पॉइंट्स अक्सर गलत हो जाते हैं मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो अब आप देख सकते हैं रूल नंबर 10 की ओर। ही लेंट मी हिज बुक, उसने मुझे अपनी बुक दी। ऑन द कंडीशन आई वुड रिटर्न द सेम बाय नेक्स्ट वीक। तो इस सेंटेंस में अगर हम देखें तो हमारे पास बुक जो है एक नाउन है, तो नाउन के बदले, नाउन के स्थान पर, इन प्लेस ऑफ नाउन हमें प्रोनाउन का इस्तेमाल करना चाहिए। और लेकिन यहाँ द सेम लिखा हुआ है।
द सेम इंग्लिश लैंग्वेज के अनुसार हमेशा याद रखिए ये एक एडजेक्टिव है। जैसे कि इस समय मेरे हाथ में मार्कर है, दिस इज द सेम मार्कर, तो द सेम मार्कर, द सेम मार्कर, मार्कर इज नाउन, तो द सेम एक एडजेक्टिव का रोल अदा कर रहा है। तो इस सेंटेंस में बुक को रिटर्न करना है, बुक नाउन है तो नाउन के बदले एडजेक्टिव नहीं, नाउन के बदले हमें प्रोनाउन का यूज करना होगा। तो बुक के लिए हमें यहाँ द सेम का प्रयोग ना करते हुए इट का प्रयोग करना चाहिए। तो आपका एक्चुअल आंसर बनेगा ही लेंट मी हिज बुक ऑन द कंडीशन आई वुड रिटर्न इट बाय नेक्स्ट वीक। तो हमेशा याद रखिए कि द सेम एक एडजेक्टिव है और अगर प्रोनाउन का प्रयोग करना है तो आप नाउन के अकॉर्डिंग ही प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। God bless.